Welcome children. In the last video, you were given an introduction about the various types of statements and the various ways in which control flows through your program during execution. In this video, we will be discussing selection statements in Python, which is if. You know that in selection flow of control, what happens? A condition is given, and if the condition is true, then one set of statements is executed, otherwise another set of statements is executed. So you are actually given a selection whether to go this way or that way. Now, if statement is actually a conditional or selection statement in Python, where you specify a condition, and if that condition is true, then you perform one course of action, otherwise you go for another course of action, and in none of the cases both course of action get executed. Now here you can see if statement is in its simplest form. See children, there are various variations of if statement. So here in this video we are discussing the very simplest form of if statement, which is if only. Clear? So you can see the syntax here. In this you have to first write if. You know that if is a compound statement. If you will look at the syntax carefully, you will be able to relate it with the syntax of a compound statement. You know that in case of a compound statement, you have a header line and the body. Header line starts with a keyword and ends with a colon. And then it has a body of statements, means block of statements indented at a different level from the header line. So in the same way you can see here that here this line is starting with the keyword if. If is a keyword and always written in small letters. Okay. Then you specify a conditional expression over here, and see at the end it has a colon. So this is basically the header line of the compound statement. Clear? In this header line, it is starting with a keyword and ending with a colon. Clear? And then it has a body of statements which is at a particular level of indentation. You can see the space left over here in the beginning. This is called indentation. Okay, you have already been given the concept of blocks and indentation earlier, and you have seen that whenever there is a colon at the end of any expression, this means it has a block of statements that is considered to be within it, and it is at a different level of indentation. And as soon as you want to come out of this body or the block of statements, you have to resume to the previous indentation level, means you have to start writing from here instead of starting from here if you want to come out of this body. Clear? So this is the set of statements which will be executed if this condition is found to be true. So here you specify this condition which is letting you know whether to do this work or not. Okay. So here you can see that if the given condition results into true, then this particular set of statements is executed, otherwise nothing happens. Yes, see in this case it is the simplest form of if statement, and here if this condition is found to be false, then nothing will take place, because you haven't given what has to be done if it is false. But if it is true, you have to do this set of statements. So now in the syntax, one more thing you can see that you have to specify a conditional expression over here. So what all forms can this conditional expression take place? Children,
इन योर डेटा हैंडलिंग चैप्टर आपने देखा था कि हमने लॉजिकल एक्सप्रेशंस बिल्ड करना सीखा था, जिसमें हम लॉजिकल ऑपरेटर्स जैसे कि एंड और नॉट, या फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स लाइक लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, इनको यूज़ करके हम एक्सप्रेशन बनाते थे और उन एक्सप्रेशंस का रिजल्ट या तो ट्रू आता था या फॉल्स आता था. सो सच काइंड ऑफ एक्सप्रेशन ओनली इज रिटन एट दिस place of conditional expression. That is why you were taught how to make those conditional expression there. Okay, so see here, the condition to be specified can be in the one of the following forms. First is the relational expression, second is logical expression, third is literal. Now here basically the need is that you should write such a expression in the at the place of conditional expression which results into a boolean value that is true or false. क्योंकि आपके इसी रिजल्ट के बेसिस पे तो आपको इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट करनी है. अगर वो ट्रू है तो करनी है, नहीं है तो नहीं करनी है. ठीक है, तो ऑब्वियसली द कंडीशन दैट यू आर स्पेसिफाइंग ओवर here should give the result in the form of true or false only. Clear? So that is why it is either a relational expression or a logical expression or a literal. Clear? Now you already know that relational and logical expression give the result in the form of true and false only. But what about literal? Literal is any value like 3, which is an integer value, like 0.5, which is a float value, like ABC, which is a string value. So this kind of value also you can write. But how come these values have true or false values? Yes. When you were told about literals, you were told that every literal in Python is associated with a truth value. On what basis? See, only these literals which are there in front of you in this table are considered to be false. Rest all the literals are considered to be true. Okay, so integer 0, float 0, complex 0, which is written as 0j, then empty list, empty tuple, empty string, non-literal and boolean false. Only these values are considered to be false. Otherwise, every value is considered to be true. Okay, so in Python, every literal is associated with a particular truth value. So on that basis, we are deciding whether the result is true or false. Let us see this thing with the help of some examples. Here you can see I have followed the syntax of if here, and what I have written in this case, if null string colon. अब देखो यहाँ पे नल स्ट्रिंग दिया है. अभी मैंने आपको बताया कि नल स्ट्रिंग की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होती है. तो यानी कि अगर यहाँ पे नल स्ट्रिंग लिखा है मीन्स कंडीशन फॉल्स हो गई, तो आपको ये काम नहीं करना है. तो जब आप इसको रन करोगे देन नथिंग विल हैपन ऑन द आउटपुट स्क्रीन. क्यों? क्योंकि कंडीशन तो फॉल्स है, और कंडीशन जब ट्रू होती तो हम ये लिखते, और अगर फॉल्स है तो हमने बताया ही नहीं है कि क्या लिखना है. तो कुछ नहीं होगा. कंडीशन फॉल्स होने पे आपका प्रोग्राम कंट्रोल सीधे यहाँ आ जाएगा एंड नथिंग विल हैपन. एंड सी व्हेन यू गॉट दिस इज द आउटपुट स्क्रीन ऑफ दिस कोड. जब आपने आउटपुट स्क्रीन देखी तो कुछ भी नहीं आया. सी इट इज ब्लैंक. दिस इज द कर्सर. ओके, बट व्हेन आई रोट अ वैल्यू विच हैज़ अ ट्रुथ वैल्यू एज ट्रू, जब मैंने 5 लिखा, अब 5 ट्रू माना जाता है. ठीक है, तो इसलिए ये इफ की बॉडी में आया और ये 5 प्रिंट करेगा. अब आउटपुट स्क्रीन देखिए. हेयर यू कैन सी 5 इज रिटन एंड देन अगेन कर्सर इज देयर. ओके, सो if you are specifying a literal over here and if that literal is true, then the body of the if will be executed, and if it is false then nothing will happen. Clear? Here you can see the flow chart that the condition is specified, and if it was found false, you were straight away coming out doing nothing.
कुछ भी किए बिना आप बाहर आ गए। लेकिन अगर ये ट्रू थी तो आपके पास ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स था एग्जीक्यूट करने को, तो आपने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके आप यहाँ पे आए। मतलब आना तो अल्टीमेटली इस पोजीशन पे है, लेकिन ये काम करके आना है या बिना कुछ करे आना है, इसका डिसीजन होता है कंडीशन की ट्रुथ वैल्यू से। क्लियर? अगेन वी हैव सर्टेन एग्जांपल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक यूज ऑफ इफ स्टेटमेंट। अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे सबसे पहले x में एक नंबर का इनपुट ले रखा है, यूज़र से कहा एंटर द वैल्यू ऑफ x। अब x की वैल्यू कुछ भी दे सकता है यूज़र, ठीक है, लेकिन अब मैंने कंडीशन क्या स्पेसिफाई की है, आई हैव स्पेसिफाइड इट इन द फॉर्म ऑफ अ लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, एंड और या नॉट से जुड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, दीज टू रिलेशनल एक्सप्रेशंस आर जॉइंड विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल एंड। तो अब देखिए, अगर ये जो वैल्यू यूज़र ने दी अगर वो 5 या 10 के बीच में मिलेगी तो ये दिस सेट ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, और अगर नहीं मिली तो कुछ भी काम नहीं होगा, ठीक है। तो अब आप देखिए, इस केस में आई हैव रन द प्रोग्राम ट्वाइस, 2 बार मैंने आपको ये प्रोग्राम रन करके दिखाया है। पहले केस में मैंने वैल्यू दी 12, जब मैंने 12 दी तो देखा 5 और 10 के बीच में 12 फॉल नहीं करता है, तो सी आउटपुट स्क्रीन इज ब्लैंक, इट इज़ नॉट शोइंग एनीथिंग, क्योंकि ये काम एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, ये दोनों काम, कंडीशन फॉल्स थी। लेकिन जब मैंने वैल्यू 8 दी तो 8 लाइज बिटवीन 5 and 10, so see it is printing the two statements that I gave, between 5 and 10 print over, and there is a line change over here because print statement when print something it changes the line because of its end argument which has default value as line change, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों लाइन लिखने के बाद आपका प्रोग्राम फिनिश हुआ, और इस केस में जब हमने 12 दिया था तो वो इस रेंज में नहीं था, इसलिए ये दोनों काम हुए नहीं और इसलिए कोई भी आउटपुट नहीं आया। Here you can see again I have taken input of a number from user. If it is equal to 2, see it is a relational expression, ठीक है। अगर ये 2 के बराबर होगा तो आपको 2 और डन लिख के आएगा, और अगर वो 2 के बराबर नहीं होगा तो आपको कुछ भी लिख के नहीं आएगा, ठीक है। अब आप देखिए, मैंने इस प्रोग्राम को भी 2 बार रन किया है। पहले केस में 4 दिया तो 4 = 2 इज फॉल्स, सी आउटपुट स्क्रीन इज ब्लैंक, ओनली कर्सर इज देयर। लेकिन जब मैंने 2 दिया तो 2 = 2 क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो प्रिंट ने 2 प्रिंट किया और डन प्रिंट किया, तो ये आउटपुट देने के बाद आपका प्रोग्राम फिनिश हुआ। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूँ, सपोज एक स्टेटमेंट यहाँ लिखा है, suppose one print is written print over, clear। अब देखो ये प्रिंट का अलाइनमेंट देखो किसके साथ है, इफ के साथ है, ठीक। तो जब जो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि हर केस में एग्जीक्यूट होगा, चाहे x की वैल्यू 2 हो या ना हो, क्योंकि ये इफ स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको इफ की बॉडी के बाहर आना हो या कभी भी ब्लॉक के बाहर आना हो तो आपको पिछले इंडेंटेशन लेवल पे वापस चले जाना होता है, और पिछला इंडेंटेशन लेवल क्या था, इफ का इंडेंटेशन लेवल, ठीक है। तो अब आपने इस प्रिंट को इफ के इंडेंटेशन पे लिखा है, इसका मतलब ये इफ की बॉडी का पार्ट है ही नहीं, तो ये हर केस में एग्जीक्यूट होगा, चाहे आपका x की वैल्यू 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो अगर ऐसा हमारा प्रोग्राम होता तो क्या आउटपुट होता, 4 के केस में आपको सिर्फ ओवर लिख के आता, क्योंकि ये काम आपको करना नहीं है और ये तो करना ही करना है, ठीक। तो यहाँ पे सिर्फ ओवर लिख के आता। लेकिन अगर ये इनपुट होता तो आपको 2 भी लिख के आता, डन भी लिख के आता, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई तो इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और उसके बाद प्रिंट ओवर भी वो लिखता, मतलब ओवर भी आपके पास लिख के आता है यहाँ पे।
तो ओवर तो दोनों ही केस में लिख के आ रहा है क्योंकि ये इफ का पार्ट ही नहीं है, लेकिन ये लिखना है कि नहीं, ये लिखना है कि नहीं, इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन दिस कंडीशन. क्लियर? Here see, I have written x इन इनपुट एंटर अ वैल्यू. अब आप यूज़र एक वैल्यू देगा यहाँ और मैंने सिर्फ x लिखा है, मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई, कोई मतलब कोई रिलेशन एक्सप्रेशन नहीं दिया, कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन नहीं दिया. इस केस में x को एक वैल्यू मिलेगी और आप जानते हैं कि वैल्यू क्या हुई, लिटरल हुआ. लिटरल में क्या होता है, आपको मालूम है कि कौन कौन सी वैल्यूज फॉल्स मानी जाती है और कौन कौन सी वैल्यूज ट्रू मानी जाती हैं. ठीक है, तो अगर जो वैल्यू दी है अगर वो उस कैटेगरी में फॉल कर रही है जो कि फॉल्स माने जाते हैं तो ये काम नहीं होगा. और अगर नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी, मतलब नॉन फॉल्स वैल्यू होगी, तो आपको ये चीज़ लिख के आएगी. तो देखिए, जब मैंने x की वैल्यू 0 दी तो उसने कुछ भी नहीं लिखा क्योंकि इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो गई. 0 इज़ कंसिडर्ड फॉल्स, तो ये फॉल्स हो गई, तो आप सीधे यहाँ आ गए, आपने ये काम किया ही नहीं. लेकिन जब 34 दी तो 34 ट्रू माना जाता है, तो इसलिए नॉन ज़ीरो वैल्यू लिख के वो बाहर आया. तो देखिए, नॉन ज़ीरो वैल्यू लिख के आ रहा है. ठीक है, नाउ हियर अगेन सी व्हाट आई हैव रिटन. यहाँ पे फिर से मैंने एक इंटीजर वैल्यू यूज़र से ली, लेकिन यहाँ लिखा है नॉट एक्स. अब नॉट एक्स क्या है, नॉट एक लॉजिकल ऑपरेटर है जिसका काम होता है कि अगर मेरे ऑपरेंड की वैल्यू ट्रू है तो मैं उसे फॉल्स कर दूँ, अगर फॉल्स है तो मैं उसे ट्रू कर दूँ. ठीक है, तो नॉट एक्स यहाँ पे अगर लिखा है तो एक्स की जो भी वैल्यू होगी, अगर उसकी ट्रूथ वैल्यू होगी ट्रू तो ये इस कंडीशन को फॉल्स कर देगा, और अगर फॉल्स होगी तो उसको ट्रू कर देगा. तो देखिए, मैंने जब पहले इनपुट दिया 0, तो नॉट ज़ीरो का मतलब हुआ, 0 मतलब फॉल्स, तो नॉट फॉल्स मतलब ट्रू, तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये लिख के आएगा. देखिए, लिख के आ रहा है x हैज़ द ट्रूथ वैल्यू फॉल्स. ठीक, और जब मैंने 45 इनपुट दिया तो 45 होता है ट्रू. ठीक है, क्योंकि वो नॉन ज़ीरो वैल्यू है तो ट्रू हुआ तो नॉट ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स. इसलिए कुछ भी काम नहीं हुआ और आप सीधे बाहर आ गए. ठीक है, तो नॉट ट्रू फॉल्स हो गया, कंडीशन हो गई फॉल्स अल्टीमेटली, तो आपका ये वर्क नहीं एग्जीक्यूट होगा और आप सीधे यहाँ आ जाएंगे. क्लियर? And you got no output. Again see here what I have done, I have taken input of a character from user. अगर वो a से z के बीच में है, देखिए कैसे कंपेयर कर रहे हैं. आपने इस तरीके के लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाना सीखा है पिछले वीडियोज़ में. तो अगर ये a to z के बीच में होगा तो ये लिख के आएगा, वरना कुछ लिख के नहीं आएगा. तो देखिए, जब b दिया तो लिखा इसने लोअर केस अल्फ़ाबेट है, लेकिन h दिया कैपिटल H, तो नथिंग गॉट प्रिंटेड. So children, in this video I will keep my discussion only up to simple if statement. In the next videos I'll be discussing other forms of if statement. If you have any confusion, you can write in the comment section. Thank you so much.